Good morning. Today we have discussed regarding the hyperaldosteronism. Okay, hyperaldosteronism. So last class में हमने hypoaldosteronism and hypocortisolism, hypercortisolism, Cushing syndrome and Cushing syndrome and Addison's disease के बारे में देखा था. हम आज देखेंगे aldosterone hormone related disorders. Okay, so glucocorticoids related disorder, Cushing syndrome, Addison's disease है. So today we will discuss regarding the aldosterone hormone related disorder. Aldosterone hormone. Okay, aldosterone hormone. Adrenal cortex and adrenal medulla. Adrenal cortex releases glucocorticoids, mineralocorticoids. So mineralocorticoids example कौन सा है? Aldosterone हार्मोन है. अगर aldosterone हार्मोन में ज़्यादा सेक्रेशन हो गए तो क्या होता है? उनको that is called as hyperaldosteronism. Hyperaldosteronism. Okay. Adrenal hormones, adrenal gland से aldosterone हार्मोन ज़्यादा रिलीज हुआ है तो that is called as hyperaldosteronism. hyperaldosteronism. Okay, hyperaldosteronism बोलते हैं उसको. Okay, aldosterone हार्मोन मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का एग्जांपल है. ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स हार्मोन्स, 3 टाइप्स का हार्मोन्स रिलीज होता है. सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का रिलेटेड डिसीज हमने देखा. आज aldosterone हार्मोन, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. ओके, hyperaldosteronism क्या होता है? इट इज अ कंडीशन इन विच characterized by excessive secretion of the mineralocorticoids. Okay, it is a condition characterized by excessive secretion of aldosterone hormone. Okay, aldosterone हार्मोन अगर ज़्यादा रिलीज हो गए तो ये कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म बोलते हैं. ओके, सो दिस हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म इसका क्यों होता है? व्हाट आर द रिलेटिव कॉजेस ऑफ हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म? कॉजेस ऑफ हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म क्या क्या कॉजेस होगा? क्योंकि अल्डोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा रिलीज हो गए तो इसको हमने हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म बोला. सो देयर आर इन कॉजेस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अल्डोस्टेरोनिज्म, हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म. प्राइमरी अल्डोस्टेरोनिज्म, प्राइमरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म एंड सेकेंडरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म. सेकेंडरी हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म. Secondary hyperaldosteronism. Okay, primary hyperaldosteronism and secondary hyperaldosteronism. Okay, this hyperaldosteronism is also called as, it's a very important, Cohn's disease. इसको हम क्या बोलते हैं? Cohn's disease से भी जानते हैं. Cohn's disease. Okay, ध्यान रख दीजिए. Cohn's disease मतलब hyperaldosteronism. ओके, कशिंग सिंड्रोम मतलब हाइपर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स लेवल. ओके, एंड एडिसन्स डिसीज हाइपोकॉर्टिसोलिज्म, डिक्रीज सिक्रेशन. ओके, कोन्स डिसीज मतलब हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स का लेवल बढ़ गए तो हमने क्या बोलते हैं? कोन्स डिसीज बोलते हैं. कोन्स डिसीज इज ए कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, मेनली अल्डोस्टेरोन हार्मोन. ओके, देयर आर 2 टाइप्स इन hyperaldosteronism, primary hyperaldosteronism and secondary hyperaldosteronism. Primary hyperaldosteronism में क्या होता है? क्योंकि प्राइमरी कोन सिंड्रोम में ड्यू टू द bilateral nodal hyperplasia. Okay, primary hyperaldosteronism और primary Cohn's disease भी बोलते हैं. Okay, this is also called as primary Cohn's disease. Okay, primary Cohn's disease क्या होता है? It is a excessive releasing of the aldosterone hormone. It is a excessive releasing of the aldosterone hormone due to the bilateral hyperplasia. Hyperplasia. Okay, bilateral hyperplasia of the adrenal gland. Okay, adrenal gland अगर bilaterally दोनों तरफ से adrenal gland का सेल्स और एड्रेनल ग्लैंड का साइज बढ़ गए तो क्या होता है?
सो एड्रेनल ग्लैंड से हार्मोन्स ज़्यादा रिलीज होता है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, इसको हमने प्राइमरी पोन्स डिसीज बोलते हैं। ओके, दिस इज प्राइमरी पोन्स डिसीज। सेकेंडरी पोन्स डिसीज मतलब सेकेंडरी पोन्स डिसीज इट इज अ increase releasing of the mineralocorticoids due to the other exogenous conditions, other exogenous conditions मतलब inside the organ, inside the body का organ का डैमेज की वजह से, बॉडी दूसरा ऑर्गन के डैमेज की वजह से क्या होता है, हाइपर पोन्स डिसीज, हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होता है। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होता है उसको हम एक्सोजेनस कंडीशंस बोलते हैं। ओके, एक्सोजेनस कंडीशंस मींस सेकेंडरी हाइपरकोर्टिसोलिज्म, इट इज अ कंडीशन इन व्हिच एक्सेसिव रिलीजिंग ऑफ द एल्डोस्टेरोन हार्मोन ड्यू टू द अदर एक्सोजेनस डिसीज कंडीशन। फॉर एग्जांपल अदर एक्सोजेनस डिसीज कंडीशन कौन सा होता है? ओके, इसमें फॉर एग्जांपल लिवर डिसीज। ओके, लिवर डिसीज, लिवर इज अ मेजर ऑर्गन इन बॉडी, अगर लिवर डैमेज हो गए तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी बढ़ने का चांसेस होता है। ओके, कार्डियक फेलियर, ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन का फंक्शंस क्या है? एल्डोस्टेरोन हार्मोन ओके अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एडी, एल्डोस्टेरोन हार्मोन क्या करते हैं? एंटी डायबिटिक हार्मोन का स्टिमुलेट करते हैं। एल्डोस्टेरोन हार्मोन एडीएच कहाँ पे वर्क करते हैं? किडनी में, वाटर सोडियम पोटेशियम रेगुलेशन में, सोडियम पोटेशियम रेगुलेशन में ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शंस करते हैं। अगर ये हाइपर सिक्रेशंस हो रहा है एल्डोस्टेरोन हार्मोन मींस हाइपर सिक्रेशंस हो रहा है तो क्या होता है? सो सोडियम को ज़्यादा एब्सॉर्प्शन करते हैं, सो पोटेशियम को ज़्यादा लॉस करते हैं। ज़्यादा एब्सॉर्प्शन सोडियम ज़्यादा हो रहा है मतलब ज़्यादा पोटेशियम भी लॉस होगा। सो ब्लड प्रेशर में वेरिएशन आने चालू होता है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। So secondary hypereldosterianism is a condition in which excessive releasing of the aldosterone hormone due to the other exogenous disease like liver disorders हो, okay, cardiac failure हो, okay, liver disorder either cardiac failure, okay, cardiac failure में क्या होता है? cardiac failure, okay, in cardiac failure heart is unable to pump the proper the requirements of the blood, so that's why the adrenal glands are suffering from the lack of blood, so that will lead to the for the compensatory mechanism के लिए क्या करते हैं? एड्रेनल ग्लैंड हाइपरप्लेजिया होता है। ओके, जब जो एड्रेनल ग्लैंड को ठीक से ब्लड नहीं मिला वो कॉम्पेंसेट करने के लिए ज़्यादा हाइपरप्लेजिया होकर ज़्यादा हार्मोन रिलीज करता है। सो कार्डियक फेलियर में हो, लिवर डिसऑर्डर हो, ओके, नेफ्रोसिस हो, प्रेगनेंसी में हो, ओके, प्रेगनेंसी इज आल्सो कॉजेस द सेकेंडरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म। प्रेगनेंसी क्यों? क्योंकि इन प्रेगनेंसी द ऑल द हार्मोन्स आर वेरिएशन टेक्स प्लेस, हार्मोन्स का लेवल वेरिएशन होने चालू होता है प्रेगनेंसी में। सो इसकी वजह से प्रेगनेंसी में भी होने का चांसेस होता है सेकेंडरी हाइपरकोर्टिसोलिज्म। ओके, सेकेंडरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म, सॉरी, सेकेंडरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म दैट इज आल्सो कॉज्ड बाय द प्रेगनेंसी, कार्डियक फेलियर, लिवर डिसीज, ओके, लिवर डिसऑर्डर में और हाइपोवोलेमिक स्टेट में, हाइपोवोलेमिक स्टेट में क्या होता है? अगर बॉडी के अंदर फ्लूइड नहीं है, बॉडी के अंदर फ्लूइड नहीं है तो सो द नेफ्रॉन इज अनएबल टू एब्जॉर्ब द फ्लूइड प्रॉपर्ली, सो दैट कॉजेस द इंक्रीजेस द कॉम्पेंसेटरी मैकेनिज्म के लिए क्या करते हैं? ज़्यादा एल्डोस्टेरोन हार्मोन को स्टिमुलेट करते हैं, रिलीज करते हैं ज़्यादा एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ओके, ज़्यादा एडीएच हार्मोन आता है। उसके बाद में हाइपोवोलेमिया के लिए रेनिन हार्मोन भी ज़्यादा रिलीज, मतलब ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए रेनिन भी सिक्रेशन ज़्यादा होता है। तो रेनिन एंजियोटेंशन भी इफेक्ट होता है इसमें। फिर बाद में एल्डोस्टेरोन हार्मोन और एंटी डायबिटिक हार्मोन, तीनों हार्मोन्स का लेवल में इंटरमेंट होने चालू होता है हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में। हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म मतलब एल्डोस्टेरोन लेवल, एल्डोस्टेरोन हार्मोन ज़्यादा सिक्रेशन होता है। ओके, ये प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म से भी हो सकता है। ये क्यों होता है? ड्यू टू द बायलैटरल हाइपरप्लेजिया ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड। इसका एग्जांपल देखो तो हमने प्राइमरी कौन सा कंडीशन में होता है? फॉर एग्जांपल ट्यूमर ऑफ द एड्रेनल ग्लैंड का ट्यूमर है, एड्रेनल ग्लैंड का ट्यूमर है तो क्या हो सकता है? एड्रेनल ग्लैंड का ट्यूमर है तो सो एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनल कॉर्टेक्स से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स लेवल बढ़ जाता है, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स लेवल बढ़ जाए तो हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म होता है, दैट इज अ कौन डिसीज हो सकता है। ओके, एंड अननोन कॉज। सो व्हाट इज द कॉजेस ऑफ प्राइमरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म? ट्यूमर, फर्स्ट one is benign tumor and second one is unknown cause.
cause is unknown, cause is what unknown. ओके, हमको बिना रीजन से भी हो सकता है. सो सेकेंडरी हाइपरअल्डोस्टेरोनिज्म में relative causes liver disease. So liver is a major organ, so which supply blood to the adrenal gland. Adrenal gland में blood supply होने के लिए liver portal veins और liver hepatic artery ये भी बहुत important काम में आता है. अगर liver disease है तो हाइपरअल्डोस्टेरोनिज्म होने का चांसेस होता है. सो कार्डियक फेलियर में भी होता है ड्यू टू द इनसफिशिएंट पंपिंग ऑफ द blood. Pregnancy, okay, क्यों? So during pregnancy the various hormones are changes takes place. Hypovolemic state, hypovolemic body के अंदर अगर फ्लूइड का लेवल कम हो गया तो तभी भी अल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन वाटर लेवल बैलेंस करने के लिए ये ज़्यादा सिक्रेशंस होता है. ओके, इस तरीके से ये एटोलॉजिकल फैक्टर्स है अल्डोस्टेरोन हार्मोन. ओके, अल्डोस्टेरोन हाइपरअल्डोस्टेरोनिज्म. ओके, इतना समझ में आया. ओके, हाइपरअल्डोस्टेरोनिज्म को हमने कौन सी डिसीज बोलते हैं. ओके, ये सिंपल है. आदर्श में प्राइमरी कौन सी डिसीज, सेकेंडरी कौन सी डिसीज. प्राइमरी कौन सी डिसीज में ट्यूमर की वजह से अननोन कॉजेज के लिए ज़्यादा रिलीज होता है. सेकेंडरी कौन सी डिसीज में लिवर डिसऑर्डर से, कार्डियक फेलियर से, नेफ्रोसिस, किडनी में दिक्कत हो गई तो भी हो सकता है, प्रेगनेंसी की वजह से भी हो सकता है, हाइपोवोलेमिक स्टेट से भी हो सकता है. ओके, these are etiological factors for hyperaldosteronism. ये etiological factors हैं. नेक्स्ट हमने पैथोफिजियोलॉजी देखा. तो पैथोफिजियोलॉजी आर सेम एज द Cushing syndrome. Cushing syndrome जैसे सेम है पैथोफिजियोलॉजी. पैथोफिजियोलॉजी पैथोफिजियोलॉजी में क्या हो सकता है कि ड्यू टू एटोलॉजिकल फैक्टर, due to etiological factor. Okay. Due to etiological factor, increase release of aldosterone hormone. Aldosterone hormone का लेवल ज़्यादा रिलीज होता है. ओके, इंक्रीज रिलीज ऑफ aldosterone hormone ज़्यादा रिलीज होता है. दैट इंक्रीज द सोडियम एब्सॉर्प्शन. इंक्रीज द सोडियम एब्सॉर्प्शन. ऑटोमेटिकली सोडियम एब्सॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, मतलब दैट कॉजेज द डिक्रीज द पोटेशियम लेवल. ओके, इंक्रीज द सोडियम एब्सॉर्प्शन मीन्स रिटेंशन ऑफ सोडियम. ओके, रिटेंशन ऑफ sodium and salt. Sodium means salt and water in body. Sodium, salt, water in body. कि बॉडी के अंदर सोडियम, साल्ट, वाटर रिटेन होना चालू होता है. अगर इस तरीके से हो गए तो क्या होता है, द रिटेंशन ऑफ सोडियम एंड साल्ट इन बॉडी दैट कॉजेज द हाइपोटेंशन. ओके, ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, क्योंकि रेनिन का हार्मोन का लेवल भी बढ़ते हैं. रेनिन एंजियोटेंसिन वैसोप्रेशन होने चालू होता है. सो दैट कॉजेज द हाइपरटेंशन. ओके, हाइपरटेंशन होता है. ओके, एंड हाइपरवैलेमिया भी होता है. हाइपरटेंशन, हाइपरवैलेमिया, हाइपरटेंशन एंड हाइपरवैलेमिया कॉज करता है कि अल्डोस्टेरोन हार्मोन बढ़ने की वजह से. ओके, सो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है. सो दैट कॉजेज द इलेक्ट्रोलाइट्स ज़्यादा सोडियम है, हाइपरटेंशन बढ़ रहा है. सो मस्कुलर वीकनेस भी होने का चांसेस होता है. मस्कुलर वीकनेस. Okay. And next, any exogenous disease means any failure of the organs. For example, अगर secondary कौन सी डिसीज में क्या होता है, ड्यू टू द एटोलॉजिकल फैक्टर. सेकेंडरी एटोलॉजिकल फैक्टर्स क्या होता है, देयर इज इंफ्रैक्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई टू द एड्रेनल ग्लैंड. एड्रेनल ग्लैंड को फॉर एग्जांपल कार्डियक फेलियर है. कार्डियक फेलियर से क्या होता है, ड्यू टू द कार्डियक फेलियर एटोलॉजिकल फैक्टर दैट कॉजेज द insufficient blood supply to okay kidney को insufficient blood supply करते हैं. the insufficient blood supply that causes the okay renal and adrenal
adrenal insufficiency. Adrenal insufficiency. Okay, renal and adrenal insufficiency हो गए तो किडनी से इंक्रीज द रेनिन हार्मोन, किडनी रेनिन हार्मोन को बढ़ाता है एंड एड्रेनल ग्लैंड इंक्रीज द एल्डोस्टेरोन हार्मोन बिकॉज ऑफ द, क्यों बढ़ाते हैं? बिकॉज ऑफ कंपेंसेशन मैकेनिज्म, बिकॉज ऑफ द कंपेंसेशन। बॉडी सोडियम को रिटेन करने के लिए, मतलब फ्लूइड ही नहीं आ रहा है, इसके वजह से काम ज़्यादा करना स्टार्ट करते हैं। सो दैट इंक्रीज द hyperaldosteronism, that causes hyperaldosteronism. Okay, so this aldosteronism, this again causes the, okay, increases the sodium level and decreases the potassium level. So again this mechanism is undergoing the secondary hyperaldosteronism. Secondary hyperaldosteronism में इस तरीके से mechanism होता है। Okay, this is the pathophysiological condition of the aldosterone hyperaldosteronism, that is called as Cohn's disease. इसको हमने क्या बोला था? Cohn's disease बोला था। Okay, Cohn's disease is a condition in which the excessive releasing of the aldosterone hormones, okay, mainly mineralocorticoids. Aldosterone hormone is what? Mineralocorticoids. Aldosterone is mineralocorticoid. Primary Cohn's disease, secondary Cohn's disease. Okay, primary Cohn's disease, this is the bilateral adrenal hyperplasia because of the tumor or unknown cause. Secondary Cohn's disease, this is the due to the exogenous disease. Other the major organs are failure, so that causes the excessive releasing of the aldosterone hormone. Okay, liver disease, kidney disease, pregnancy, hypovolemic state, ये कंडीशन में सेकेंडरी Cohn's disease होने का चांसेस होते हैं। पैथोफिजियोलॉजी इस तरीके से कंडीशन होता है। सो साइन एंड सिम्टम्स के बारे में हम देखा तो साइन एंड सिम्टम्स अभी हमको ऑलरेडी मालूम हो गए। क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ Cohn's disease, Cohn's disease का क्या क्या सिम्टम्स होता है? क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ Cohn's disease क्या क्या क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं? सो एक्सेसिव सोडियम रिटेंशन हो रहा है, दैट कॉजेस द hypervolemia. So excessive salt retained in the body, that is called hypernatremia. सोडियम लेवल बढ़ता है बॉडी के अंदर, ठीक है। पोटेशियम लेवल कम होता है क्योंकि सोडियम बढ़ गया तो पोटेशियम ऑटोमेटिक कम होता है। हाइपोकैलेमिया, ओके, हाइपोकैलेमिया होता है, ठीक है। हाइपरवोलेमिया होता है, हाइपरटेंशन होता है, ओके, हाइपरटेंशन भी होने के चांसेस होता है, ओके। सो इस तरीके से साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं Cohn's disease में। Cohn's disease में ये हाइपरवोलेमिया, हाइपरटेंशन, हाइपोकैलेमिया, यही सिम्टम्स दिखते हैं। सो साथ साथ में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से नोजिया वोमिटिंग भी हो सकते हैं। नोजिया वोमिटिंग, ओके, नोजिया वोमिटिंग। नेक्स्ट हेडेक, ओके, वीकनेस, फटीग। सो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, वीकनेस भी होता है, फटीग भी होता है, वोमिटिंग, हेडेक, ये कॉमन सिम्टम्स दिखने स्टार्ट होता है क्लिनिकल सिम्टम्स में, ओके। नेक्स्ट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द डायग्नोसिस ऑफ द aldosterone Cohn's disease, diagnosis of Cohn's disease. ये सिंपल टॉपिक है, इट्स नॉट अ मच मोर इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो कसिंग सिंड्रोम डिसीज मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पर 2 मार्क्स में कभी कभी पूछ सकते हैं व्हाट इज Cohn's disease, ओके। सो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहला हम हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट्स कंप्लेंट्स, ओके, व्हाट आर द कंप्लेंट्स आर एक्सप्लेन बाय द पेशेंट, क्या क्या दिक्कत हो रहा है। फिजिकल एग्जामिनेशन में एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में एनी मास, एनी कैंडर, एनी पेन और एनी एनलार्जमेंट, हेपेटोमेगाली, कार्डियोमेगाली, ये सब देखना है फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, देन रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन। रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इज सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स। इन इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल क्या आता है? सोडियम लेवल बढ़ता है, ओके, इंक्रीज सोडियम लेवल मोर देन 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, ओके, 145 मिली इक्विवेलेंट से ज़्यादा आता है
पोटेशियम लेवल क्या आता है, कम आता है, ओके, लेस देन 3.0 mE2, ओके, मिली इक्विवेलेंट 3.0 से कम होता है। नॉर्मल सोडियम लेवल 135 to 145, सो सोडियम लेवल बढ़ते हैं, पोटेशियम लेवल कम होता है, ओके। सो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सीरम अल्डोस्टेरोन एग्जामिनेशन। सीरम अल्डोस्टेरोन लेवल का हमने चेक करना होता है, ओके। अल्डोस्टेरोन टेस्ट करके आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में। अल्डोस्टेरोन टेस्ट में क्या करते हैं, सबसे पहला पर्सन्स को एक स्टैंडिंग पोजीशन में सैंपल निकाल के चेक करते हैं एंड लाइन डाउन सोता है ना तभी भी ये चेक करते हैं, क्योंकि ये स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन एंड लाइन डाउन पोजीशन में सिक्रेशन ऑफ अल्डोस्टेरोन हार्मोन्स आर वेरीज, ओके। ये सिक्रेशन में थोड़ा वेरिएशन होने चला होता है नॉर्मली, तो इसके लिए अल्डोस्टेरोन टेस्ट करके आता है, ओके। अल्डोस्टेरोन टेस्ट करते हैं, ओके। सीरम अल्डोस्टेरोन में स्टैंडिंग में नॉर्मल अल्डोस्टेरोन लेवल इन स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन में, स्टैंडिंग और सिटिंग पोजीशन में नॉर्मल सीरम अल्डोस्टेरोन 7 to 30 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, ओके। 7 to 30 नैनोग्राम पर डेसीलीटर होता है, ओके। 7 to 30 नैनोग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल सीरम अल्डोस्टेरोन लेवल है, ओके। एंड लाइन डाउन पोजीशन में 3 to 16, लाइन डाउन सोने का टाइम, ओके। पेशेंट को सुला के चेक किया तो कितना आता है, 3 to 16 नैनोग्राम पर डेसीलीटर, ओके। दिस इज द नॉर्मल वैल्यू ऑफ द अल्डोस्टेरोन लेवल। अल्डोस्टेरोन लेवल का नॉर्मल वैल्यू है ये। इस तरीके से डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं। इफ सपोज supportive diagnostic evaluation, sometimes the serum renin enzymes also, serum renin also evaluated। serum renin का renin level का भी चेक करता है, so 0.6 to 4.2, renin का नॉर्मल वैल्यू renin 0.6 to 4.2 mg/ml, ओके। ये renin लेवल का नॉर्मल वैल्यू, ये मोस्ट रेयरली चेक करता है। फॉर अगर सपोर्टिव एक्स्ट्रा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन चाहिए तो ये रेनिन का लेवल चेक करते हैं, ओके। अदर देन दिस, ओके, अल्ट्रासोनोग्राफी आपकी किडनी का अल्ट्रासोनोग्राफी करता है, आइदर एडनल ग्लैंड का अल्ट्रासोनोग्राफी करना है, ओके। एमआरआई भी करने का, क्योंकि कोई मास और समटाइम्स ट्यूमर ये सब देखने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी एंड MRI, अल्ट्रासोनोग्राफी एंड MRI is also plays an important role in hyperaldosteronism, okay। hyperaldosteronism में MRI से स्कैन करना भी इम्पोर्टेंट है, ओके। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट ऑफ कोन्स डिसीज। कोन्स डिसीज किस तरीके से मैनेज करते हैं, ओके। सो हम बॉडी का अंदर क्या हो रहा है, मैनेजमेंट, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट मीन्स बॉडी के अंदर वाटर सोडियम लेवल बढ़ रहा है, सो इसमें क्या है, एडमिनिस्टर एंटी डायरेटिक हार्मोन्स, एंटी डायरेटिक ड्रग्स देना है, ओके। एडमिनिस्टर द एंटी डायरेटिक्स नहीं, डायरेटिक्स, एडमिनिस्टर डायरेटिक्स मीन्स दिस ड्रग्स हेल्प्स टू, ओके, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दी बॉडी से ज़्यादा वाटर को बाहर निकालते हैं, सो वाटर के साथ सोडियम भी निकालते हैं। फॉर एग्जांपल लैसिक्स, ओके, लैसिक्स इंजेक्शन है, प्रोजोमाइड, ओके, प्रोजोमाइड लैसिक्स डायरेटिक्स देना है, ओके। सो इसके अलावा भी क्या फॉर एक्सेस अल्डोस्टेरोनिज्म एडमिनिस्टर अल्डोस्टेरोन इनहिबिटर ड्रग्स आते हैं, अल्डोस्टेरोन इनहिबिटर ड्रग्स, एडमिनिस्टर अल्डोस्टेरोन इनहिबिटर ड्रग्स, ओके। अल्डोस्टेरोन लेवल को सिक्रेशंस को कम करना है, इनहिबिट करने के लिए, सो स्पाइरोलेक्टन मोस्ट कॉमनली ड्रग्स यूज्ड इन ऑल हॉस्पिटल्स, स्पाइरोलेक्टन याद रखिए, अल्डोस्टेरोन इनहिबिटर ड्रग्स है, ओके। अल्डोस्टेरोन को इनहिबिट करते हैं, ज़्यादा अल्डोस्टेरोन को रिलीज करते नहीं, ओके। स्पाइरोलेक्टन
amiloride spironolactone, amiloride, these are the aldosterone inhibitor drugs. These are the diuretics. These diuretics helps to, okay, loss of water through the body, that helps to control the blood pressure. Blood pressure को कंट्रोल करते हैं, हाइपर वाले में को कंट्रोल करता है. ओके, ये अल्डोस्टेरोन इनहिबिटर देने से भी अल्डोस्टेरोन लेवल भी इनहिबिट होता है. ओके, सो डायरेटिक्स एडमिनिस्टर करना है. ओके, नेक्स्ट, अब पोटेशियम लेवल कम है बॉडी के अंदर, यू हाई पोटेशियम लेवल, यू हाई पोटेशियम फूड, यू हाई पोटेशियम फूड, फॉर एग्जांपल बनाना, फ्रूट्स, बनाना वगैरह देना, हाई पोटेशियम फूड देना है. क्योंकि पोटेशियम का फूड, पोटेशियम कम है, जैसा पोटेशियम बढ़ता है जैसे सोडियम लेवल कम होता है. ओके, नेक्स्ट सोडियम फूड इस तरह से, जिसे सिंपल है, इस तरह से मैनेजमेंट करना है. ओके, सर्जिकल मैनेजमेंट में एड्रेनोलेक्टोमी. ओके, सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, एड्रेनल ग्लैंड को रिमूव करना है. अगर ये ट्रीटमेंट प्रोग्नोस नहीं हुआ पेशेंट का अंदर, सो बाद में लास्ट ऑप्शन इज सर्जिकल मैनेजमेंट. सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करते हैं, यूनिलैटरल आइदर बायलैटरल एड्रेनोलेक्टोमी, बायलैटरल adrenolactone. This is a very important surgery in the Cohn's disease. Cohn's disease is important surgery. Okay, this completes the Cohn's disease. Cohn's disease में हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म होता है. अल्डोस्टेरोनिज्म इज एग्जांपल ऑफ द मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. प्राइमरी Cohn's disease, secondary Cohn's disease, पैथोफिजियोलॉजी, साइन एंड सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड मैनेजमेंट होंगे. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन सिंपल है, हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन करना है. सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स लेवल वेरी इंपॉर्टेंट है, सोडियम लेवल बढ़ाते हैं, पोटेशियम लेवल कम आता है. सो साथ में अल्डोस्टेरोन लेवल को चेक करना होता है. सो अल्डोस्टेरोन लेवल सिटिंग पोजीशन में एंड लाइंग डाउन पोजीशन में दो तरीके से करता है. सो फॉर सपोर्टिव डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एक्सरे, अल्ट्रासोनोग्राफी, एमआरआई भी कर सकते हैं एड्रेनल ग्लैंड का. एंड मैनेजमेंट में हाइपर वॉल्यूम में है, सो वॉल्यूम लेवल कम करने के लिए डायरेटिक्स देना है. सो अल्डोस्टेरोन लेवल को इनहिबिट करने के लिए अल्डोस्टेरोन इनहिबिटर ड्रग्स स्पाइरोनोलेक्टोन एंड अमिलोराइड, ये दो ड्रग्स कॉमनली प्रेजेंट है इन हॉस्पिटल. ओके, इसके अलावा भी हाई और रिचेस्ट पोटेशियम फूड सप्लीमेंट देना है. सो पोटेशियम फूड देने से सोडियम लेवल कम होने के चांसेस है. So if suppose the patient is unable to prognose early with these medications, then go for directly surgery. That surgery name is bilateral adrenalectomy, means surgical removal of the both the adrenal gland. In next class we will discuss regarding the hyposecretion of the adrenal hormones, diabetic insipidus. Okay, इसको हमने बोलते हैं diabetic insipidus. नेक्स्ट क्लास में diabetic insipidus के बारे में देखेंगे. थैंक यू वेरी मच.